Hello students, now we are solving the 11th computer science question paper and you are having your exam in March. So we have started our preparation. Now let us go through the marks distribution. Introduction to computer system is of 10 marks, Python 45 marks and society, law and ethics 15 marks. So Python is the most important topic, 45 marks. So we will go through the Python topics one by one. All the Python topics we will go through. So we were solving the question papers. Now let us solve more questions. Now what possible outputs are expected to be displayed when this program is executed? Now here you can see 4 times print commands are there. So 4 outputs will be there with endments on the same line and import random. So here print 100 plus. Now random is taking any number from 5 to 10. So obviously the minimum number, if it is 5, then 105 it will start with till 10. So you can check here 105 till 10 if any combination is there where only 105 till 10. I think in first one 102 is there, so it is incorrect. Second 103 it is incorrect. Third 101 incorrect. Last one is correct. So let us check our answer. Yes, the last one is correct option, 105, 6, 7, 8. So this is correct option. Now show output of the following code. So here you are having the code. So let us see the output. Now first it will start here, n equals to 5, result equals to calc square, it will call and pass 5. X will have value 5. Now power x to the power 2 means 5 5 the 25. It will return result 25. So the answer is 25. So answer you will write, these all are one word. So these are the outputs. So answer is 25. Now next one is show output of the following code. Here function you are calling, y value is 2 and x value is 1. So 2 plus 1 is 3. So x will be 3 and in y you will have 2 plus 1 3. So both will be 3. So 3 comma 3. I think while printing it will leave a space here. So output you write 3 space 3. Now next is show output of the following code. So here function we are calling and the value of num is 1. So while calling the function num equals to 3, print 3. It is printing here first 3. Then it will come back and then it will print num, that is 1. So first it will print 3 and then down you have to print 1. Now next is show the output of the following question. Here we have used global keyword. So that means this num value will be used outside also. So num equals to num plus 3. 3 plus 1 is 4. It will print 4 and here also it will print 4. So 4 and next 4 you will write down because print command is used. So it will be written down. Next, test x is 1, y is 2. So here 1, 2 plus 1, 3. And here also 2 plus 1, 3. So 3 space 3. Same question. 3 space 3 it will be. Next one is c equals to fun. You are calling fun and 4 and 2. So 4 to the power 2. 2 star matlab to the power. So 4 to the power 2. 4 4 the 16 हो जाएगा. Return c के पास 16 आ गया. Print c 16. So answer is correct. 16. Now next one is you are calling fun and you are giving two values 7 and 2. जब हम value देते हैं तो वो default value नहीं लेगा, ये values लेगा. तो A का value 7 हो जाएगा, B का value 2 हो जाएगा. 7 to the power 2, 7 7 the 49 हो जाएगा. तो इसका आंसर 49 होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, A का वैल्यू 4 है, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है. तो B का वैल्यू पे 3 दिया, A का वैल्यू हमने 2 दिया है. तो 2 to the power 3, 2 to the 4, 4 to the 8 हो जाएगा. तो C का वैल्यू 8 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली आंसर हमने देख लिया है. A का वैल्यू 2 है, B को हमने वैल्यू नहीं दिया तो B ने डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया है. तो 2 to the power 2 will be 4. ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा.
नेक्स्ट पॉज करके वीडियो को खुद कैलकुलेट करके आंसर बोलो, उसके बाद फिर आंसर को देख के अपना चेक करोगे, ठीक है। सो आई एम सॉल्विंग इट। बी को मैंने 4 दिया, ए को कुछ नहीं दिया तो ए ने 4 ले लिया, बी के पास भी 4 है तो 4 टू द पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 4 द 16 4 द 64 इंटू 4 जितना वैल्यू है 256, ठीक है। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब वन वर्ड अगर आएगा तो उसमें खाली डेफ लिखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कम रहेंगे अभी पेपर में, ज़्यादातर वन वर्ड वन लाइन आंसर्स रहेंगे और एमसीक्यू भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के रहेंगे। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड है, आंसर दिख रहा है डेफ कीवर्ड। अब फंक्शन हेडर एंड्स विथ, फंक्शन हेडर या कोई भी ब्लॉक बनाते समय हम कोलन यूज करते हैं, तो फंक्शन हेडर एंड्स विथ कोलन साइन, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। प्रिंट मैक्स को हमने कॉल किया, 3 और 4 वैल्यू दिया, ए के पास 3 आया, बी के पास 4 आया, तो 3 is greater than no equals to no, so it will print 4 is maximum, तो इसका आंसर होगा 4 is maximum, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। x इक्वल्स टू 50, यहाँ पे हम आ जाएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, 50 पास करेंगे तो x is 50 प्रिंट करेगा, फिर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज्ड लोकल x to 2 हो जाएगा, फिर बाहर आने के बाद फिर से x is now 50 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसमें 3 लाइन में आउटपुट होना चाहिए, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा। इसमें 3 लाइन में 3 प्रिंट कमांड्स है, तो 3 लाइन में, क्योंकि जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को तो ये दोनों प्रिंट कमांड, यहाँ पे लास्ट आउटपुट होना चाहिए था या फर्स्ट आउटपुट, तो फिर लास्ट आउटपुट में x is now 50 होगा, इसमें क्योंकि सारे नाउ लिखे हुए हैं तो x is now 50, ये फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट वाला आंसर है, हाँ, इसमें लास्ट आउटपुट होना चाहिए, विच विल बी द लास्ट आउटपुट, यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका आउटपुट क्या है। सारे आउटपुट के ही क्वेश्चन सभी सॉल्व कर रहे हैं। फंक्शन को हमने कॉल किया, 25 ए के पास आया, सी को हमने 24 दिया, बी को हमने वैल्यू नहीं दिया, तो ए इज 25, बी इज 5 एंड सी इज 24, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, यस, करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पेपर सॉल्व कर चुके हो। व्हाट विल बी द लास्ट लाइन, लास्ट आउटपुट, इसको करेक्शन कर लेते हैं। व्हाट विल बी द लास्ट आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। डेफ में रिटर्न 3, तीनों को प्लस करके रिटर्न करना है, तो 432, आंसर 432 ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ऐसे ही सारे आउटपुट्स को आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये आपके पेपर में आएंगे ही। कौन कौन से क्वेश्चन से, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफायर्स हमने पढ़े ही हैं कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, और अंदर हम कहीं पे भी कोई स्पेशल कैरेक्टर डॉट या स्पेस नहीं यूज कर सकते, नंबर्स हम अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला वैलिड है, ट्रू एक कीवर्ड है, तो बी इसका आंसर होगा। इनवैलिड कीवर्ड पूछा गया है, तो इसका आंसर बी होगा। बाकी तीनों वैलिड है, ए, सी और डी वैलिड है। आंसर चेक कर लेते हैं, ट्रू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन द लिस्ट, राइट द आउटपुट ऑफ दिस। 2 से लेके 5 लिस्ट स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, तो 0 1 2, 2 से लेके मीन 6 से लेके फिर 5 मतलब 4 से पहले रुक जाएगा, तो 0 1 2 3 4, तो 6 82 एंड 5, 6 82 एंड 5 करेक्ट आंसर है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। आइडेंटिफाई द वैलिड एरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें वैलिड एरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है,
डबल स्टार सी है इसका। ये रिलेशनल अरिथमेटिक नहीं है एंड लॉजिकल है, तो सी आंसर है इसका। यस, डबल स्टार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज tuple t is declared as this, which of the following is incorrect? tuple immutable है, tuple के वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जो b दिया हुआ है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन b होगा। नेक्स्ट, write a statement in Python to declare a dictionary day whose keys are 1 2 3 and values are Monday, Tuesday, Wednesday। डिक्शनरी का नाम डे है, तो डे इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस के अंदर की लिखेंगे पहला 1 कोलन, मंडे को सिंगल कोट्स में डालेंगे, तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से लिखना है, डे इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस के अंदर 1 कोलन मंडे कॉमा 2 कोलन ट्यूसडे, जैसे दिया है, एम कैपिटल है, टी कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, जैसे दिया है हमको ऐसे ही आंसर को लिखना है। Next question, a tuple is declared as t, what will be the value of sum of t? सारे values को add करके जितना आ रहा है 30 आ रहा है, 8 plus 9 plus 6 plus 5 plus 2 is 30 लिख लेंगे। Next, name the built-in function, mathematical function method that is used to return an absolute value of a number। absolute value के लिए abs लिखते हैं, तो यहाँ पे abs with parenthesis। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये एक लिस्ट है, तो यहाँ पे आंसर में हम लिस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट, इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द आउटपुट? यहाँ पे नेम में कंप्यूटर साइंस विद पाइथन है, प्रिंट नेम 3 से लेके 11, तो 0 1 2 3 पी से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, तो आई तक, तो पी से लेके पुटर SCI तक, आई तक लिखना है, ये है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके स्ट्रिंग के आउटपुट्स हैं, ये भी आने वाले हैं। स्ट्रिंग के आउटपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आते हैं, जिसमें एक स्ट्रिंग दिया है पाइथन और एक S2 दिया हुआ है। हम इसमें चेक कर रहे हैं, एक एक करके हम उठा रहे हैं और चेक कर रहे हैं अगर C या N है, C एंड N, एंड एक ही बार में वो C भी होगा और N भी होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड दिया हुआ है, यहाँ और होना चाहिए था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने अलग से सॉल्व किया है, उसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट, रैंडम में रैंडेंट में 1 से लेके 4 तक है, और प्रिंट नम ऑफ वैल्यू, तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ 2 से लेके 5 के बीच का कोई भी एक नंबर इनटू वैल्यू, नम ऑफ वैल्यू इनटू वैल्यू, तो वैल्यू में अगर ये 1 आ रहा है तो इनटू 2 हो जाएगा, तो 2 to the 4 आ जाएगा। अगर ये 2 हो रहा है तो 3 to the 6 आ जाएगा। अगर 4 है तो 4 3 the 12 आ जाएगा। अगर 5 आ रहा है यहाँ पे, नम ऑफ वैल्यू इज 5 5 4 the 20, तो इसमें ऑप्शन में 2 1 the 2, हाँ, जब वैल्यू 1 है, पहला वाला है, जब वैल्यू 1 है तो 1 केस में नम ऑफ 1 is 2 और यहाँ वैल्यू इज 1, तो यहाँ पे 2 1 the 2, तो इसका आंसर 2 1 the 2 हो जाएगा। बाकी जो केसेस है वो ऑप्शन में नहीं दिए हैं, पॉसिबल आउटपुट्स में, वो भी हो सकते थे, 3 to the 6 भी हो सकता था, 4 3 the 12, 5 4 the 20, तो ये कोई भी इसमें से ऑप्शंस अगर होते हैं तो वो सिलेक्ट, तो खाली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 2 1 the 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे आउटपुट के क्वेश्चंस है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, प्लस थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए हमको
इस टाइप के आएंगे. राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. कौन कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स. तो कोई भी 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना है. एक्सपैंड द टर्म प्रोम एंड डीवीडी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी. fill in the blanks. 1 gigabyte equals to the giga mega kilo. तो 2 बार 1024 into 1024 किलोबाइट हो जाएगा. एंड 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. Now what is the difference between RAM and ROM? RAM random access memory होता है, ROM read only memory. RAM volatile होता है, ROM non volatile होता है. तो ये हम लोगों ने जो differences किए हैं लाइन खींच के, ऐसे लाइन खींच के हम 4 differences इसके लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इसमें रैम पूरा डिलीट हो जाता है जब when power is switched off, whereas ROM is permanent, RAM is temporary. ठीक है. फिर टाइप्स ऑफ रैम इज स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, एंड टाइप्स ऑफ रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम एंड प्रोम. यहाँ पे खाली 2 टाइप्स ऑफ रैम पूछा है, इसलिए खाली स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम लिखना है. नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ मोबाइल सिस्टम? मोबाइल सिस्टम के सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स: मोबाइल प्रोसेसर, डिस्प्ले सब सिस्टम, कैमरा, मोबाइल सिस्टम मेमोरी, स्टोरेज एंड पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम. डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर. कंपाइलर पूरे को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है. तो कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो. पूरे को एक साथ करता है और इसमें लाइन बाय लाइन दिया हुआ है. कंपाइलर में एक साथ एरर दिखाता है अलॉन्ग विथ लाइन नंबर. इंटरप्रेटर में एक एक एरर को हटाना पड़ता है तभी वो आगे बढ़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज. पाइथन इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. एनी 2 फीचर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म है. एनी 2 फीचर्स यू हैव टू राइट. आइडेंटिफाई द वैलिड आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ये तो आएगा ही, 100% है. वैलिड आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, कैन कंटेन अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड characters. So it can start with the underscore or alphabet. Identifier हमेशा एक alphabet, character या फिर underscore से start हो सकता है. बाकी number या फिर special character से start नहीं हो सकता है. उसके अंदर खाली हम underscore, alphabets और numbers रख सकते हैं. अंदर हम special character, dot और space नहीं डाल सकते. Keywords हम identifier नहीं बना सकते. Next, rewrite the following program code after removing error if any. प्रोग्राम दिया रहेगा, आपको एरर को हटा के उसको अंडरलाइन करना है. कहाँ कहाँ एरर्स है आप देख लीजिए, कहाँ कहाँ एरर्स है, और फिर उसको निकाल के आप अंडरलाइन कर दीजिए. करेक्शन करके फिर अंडरलाइन कर दीजिए. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन से अब प्रोग्राम्स आएंगे आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के. तो प्रोग्राम्स में इफ़ यूज़ करके, फॉर यूज़ करके, वाइल यूज़ करके सारे प्रोग्राम्स आएंगे. जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 3 नंबर को इनपुट ले लेना है. उसके बाद इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो उसका लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है. बाकी के पेपर्स भी देख लेते हैं एक बार. इसमें एरर फाइंडिंग में जहाँ जहाँ करेक्शंस किए हैं वहाँ नीचे अंडरलाइन करना ज़रूरी है. फॉर से वाइल में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं कि फॉर के 3 पार्ट्स होते हैं: इनिशियल वैल्यू, टर्मिनेट वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू. इनिशियल वैल्यू को हम बाहर ऊपर लिख देते हैं, जहाँ पे फॉर है टर्मिनेट वैल्यू के साथ हम लिख देते हैं. फिर फॉर का ब्लॉक पूरा बना के लास्ट में हम उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू को लिखते हैं. ये हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, उसके भी वीडियोस हैं. सारे लिंक हम नीचे दे देंगे. तो एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो है, उसको जाके देखने से ही हो जाएगा. सीडो कोड नॉर्मली इंग्लिश में या नॉर्मल इजी लैंग्वेज में हम उसको लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है. नाउ एरर फाइंडिंग में जहाँ जहाँ करेक्शंस है, जैसे लेन होना चाहिए, लेंथ लिखा हुआ है, और इंडेंट होना चाहिए, कोलन होना चाहिए फॉर में, तो ये सारे करेक्शंस हैं. फिर हाउ मेनी टाइम्स स्माइल विल बी प्रिंटेड. आउटर वाला जो है वो 2 से लेके 10 -1, सो 10 से लेके 3 तक 8 टाइम्स.
this is 3 times, so 8 1 8, 8 to the 16, 8 3 the 24. This will be plus, yes, correct. So it is 24. I think these questions we have already done. You just go through the paper. Now dictionary maximum marks you have to calculate and show. So here one dictionary is given, max variable you have taken, and values one by one you will take. You will check if max is smaller than the value, then max will take the value. So like this it is printing. Then vowels and consonants, simply a string you have to ask from the user, and then for vowels one variable, for consonant a second variable, and then for x in range, if it is that string of x in AEIOU, अगर वो vowel है तो c equals to c plus 1, else consonant है तो d equals to d plus 1. ये प्रोग्रामिंग के लिए सारे जितने important programs है जो आते हैं normally, greater than, less than, table of a number, then factorial, Fibonacci, prime numbers, ये सारे क्वेश्चंस को एक जगह, सारे प्रोग्राम्स को हम लोग एक जगह लिख लेंगे. पैटर्न्स. नेक्स्ट इज व्हाट डज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स, जहाँ पे जैसे पाइथन हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं. इट मीन्स दैट इट कैन रन ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, मैक्स, लाइनक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड इन इनवैलिड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग्स में डबल कोट्स होते हैं, सिंगल कोट्स, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं होता. एक जगह डबल कोट्स, एक जगह सिंगल कोट्स या कर्ली ब्रेस नहीं होते हैं. आइडेंटिफायर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं. डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू क्या है. डबल इक्वल्स टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है, इसको इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर. सिंगल इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जब वैल्यूज दिए जाते हैं तब हम सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं. Mutable, immutable. Mutable values can be changed, immutable values cannot be changed. Mutable के examples कौन कौन से हैं. List है and values of dictionary. Immutable के examples है keys of dictionary या फिर string, tuple, integers, all these are immutable. ठीक है. Next, what is non-literal in Python? Absence of value or literal that has not yet been created is none. Non-literal. None जो है अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, उसको जब देखना चाहेंगे, जब वैल्यू नहीं होता है उसके पास, तब इसमें none आ जाता है. ये जब कुछ भी वैल्यू नहीं होता है तब वो none दिखाता है. नेक्स्ट है इसमें रिराइट द फॉलोइंग. वाइल से फॉर में कन्वर्ट करना है तो इनिशियल वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे फॉर लगा के इनिशियल वैल्यू को पहले लिखेंगे, टर्मिनेट वैल्यू को उसके बाद कॉमा करके लिखेंगे, और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू देख लेंगे, उसको लास्ट में. बाकी ब्लॉक एज इट इज, काउंट और सम एज इट इज रहेगा, नीचे का भी बाकी सब एज इट इज ही रहेगा. नेक्स्ट, सो ये हो गया एक पेपर. ऑलरेडी हम लोग अभी तक 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं. केस स्टडी ये हमारा मार्किंग हो गया. सो इसके हिसाब से हम बाकी के प्रोग्राम्स भी सॉल्व करेंगे. और सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के क्वेश्चंस जितने हैं उसको भी हमको सॉल्व करना है. तो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे. लिस्ट को अच्छे से सॉल्व करना है. लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट के फंक्शंस. तो ये लिस्ट का हम एक अलग वीडियो बना के लिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो आप एक बार ऐसे ही पेपर्स, सारे पेपर्स देखते जाइए. डिस्क्रिप्शन में सारे पेपर्स एक एक करके हम डाल दे रहे हैं, सॉल्व करते जाइए, और जिसमें जिसमें डाउट है जिस क्वेश्चन में, उसको फिर आप क्लियर कर लीजिए. तो इसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड क्या क्या आएगा इसमें, एंड स्पेशली द मार्किंग. दैट इज सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद इसमें ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. जैसे वेब टू क्रिएट अ डिक्शनरी नेम्ड ईयर हुज कीज आर month names and values at their corresponding number of days and display the dictionary. तो यहाँ पे हमको डिक्शनरी को क्रिएट करना है. तो हम क्या करेंगे, यूज़र से लेते जाएंगे और डिक्ट के मंथ में उतने डेज को डालते जाएंगे. तो ये सारे 5 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे.
ठीक है, तो ऑलरेडी शुरू में हमने लिख दिया था कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो उसमें टोटल 1 to 21 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 15 सॉल्व करना है। उसके बाद 2 केस स्टडी है, 2 केस स्टडी, और फिर 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 4 questions, or 5 marks ke 3 questions. So go through the question paper, solve all the questions. I am just sharing in the description. You just go through the question, solve it. If in any question, if you have the doubt, you just discuss there only that this question number I am not able to understand, so that we can solve your doubts. So thank you. Have a nice day.